بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ معزز اساتذہ، عزیز طلباء و طالبات، میں فرزانہ بیگم، گورنمنٹ پی یو کالج سیڑم، ضلع کلبرگی۔ آج مجھے اقرا آن لائن کلاسز گروپ کی جانب سے یہ کلاس کنڈکٹ کرنے کا موقع دیا گیا ہے، جس کے لیے میں اس گروپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور آج ہم دہم جماعت کی سائنس کی کتاب سے 6th لیسن جو ہے حیاتی افعال کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ حیاتی افعال سبق کے لیے میں نے ایم اے جاگیردار سر کے بنائے ہوئے ایپ سے نوٹس کی مدد لی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں ایم اے جاگیردار سر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے اردو میڈیم کے طلباء کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے ایک بہترین ایپ بنایا ہے۔ تو لہٰذا بچوں، ہم اپنا سبق سٹارٹ کریں گے حیاتی افعال۔ حیاتی افعال جو سبق ہے بچوں، اس میں ایگزامز میں آپ کو 6 مارکس کے سوالات پوچھے جائیں گے، جس میں سے ملٹیپل چوائس یا 1 مارکس میں ایک سوال پوچھا جائے گا، اور 2 مارکس میں کمپلسری ایک سوال پوچھا جائے گا، اور 3 مارکس میں آپ کو شکلوں والا سوال پوچھا جائے گا، جس میں آپ کو شکل اتار کے حصوں کے نام لکھنے ہیں۔ تو لہٰذا اس سبق سے آپ کو ٹوٹلی 6 مارکس ملنے والے ہیں۔ اگر سبق کو اچھے سے سمجھیے اور بعد میں اس کا غور سے مطالعہ کیجیے، تاکہ آپ کو 6 مارکس آسانی سے حاصل ہو سکیں۔ تو ہم پہلے سبق کے نام پہ فوکس کرتے ہیں بچوں، کہ سبق کا نام ہمیں کیا بتلاتا ہے۔ دیکھیے، سبق کا نام ہے حیاتی افعال۔ حیاتی افعال سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے حیات یعنی زندگی، افعال یعنی کام، یعنی وہ کام جو کسی جاندار کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہیں، حیاتی افعال کہلاتے ہیں۔ ہم اس کا ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ تمام عضویوں کو رکھ رکھاؤ کے لیے چند بنیادی اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ سبھی اعمال جو مجموعی طور پر رکھ رکھاؤ کا کام انجام دیتے ہیں، اعمال زندگی یا حیاتی افعال کہلاتے ہیں۔ مثالیں ہیں اس کی: تغذیہ، تنفس، نقل و حمل اور اخراج۔ یہ 4 اہم حیاتی افعال ہیں جو کسی بھی جاندار کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ تغذیہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے۔ تغذیہ کسے کہتے ہیں؟ عضویوں کے ذریعے غذا حاصل کرنے کا طریقہ تغذیہ کہلاتا ہے۔ تغذیہ کا عمل 2 طریقے کا ہو سکتا ہے، ایک خود پرور تغذیہ اور ایک غیر پرور تغذیہ۔ عضویوں کے ذریعے، جانداروں کے ذریعے غذا حاصل کرنے کا عمل جو ہے وہ تغذیہ کہلاتا ہے۔ ہم اس میں دیکھیں گے خود پرور تغذیہ کسے کہتے ہیں۔ خود پرور تغذیہ یعنی خود پرور، جو خود اپنا غذا آپ بناتے ہیں، جو غذا اپنی خود سے بناتے ہیں، اس کو خود پرور تغذیہ یا آٹوٹروپک نیوٹریشن کہا جاتا ہے۔ چند عضویے مثلاً ہرے پودے، نباتات غیر نامیاتی مادوں کا استعمال کرتے ہوئے، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، پانی ہے وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ یہ عمل خود پرور تغذیہ کہلاتا ہے۔ ہرے پودے اور چند بیکٹیریا میں خود پرور تغذیہ کا عمل انجام پاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ عمل کو دیکھتے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کا استعمال کون کرتے ہیں؟ پودے کرتے ہیں۔ تو یہ پورا عمل کیا کہلائیں گا بچوں؟ شعاعی ترکیب کا عمل یا ضیائی تالیف کا عمل، فوٹوسنتھیسس ہم اسے کہتے ہیں، جہاں پر سبز نباتات کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی، سورج کی روشنی، کلوروفل کی موجودگی میں کاربوہائیڈریٹ میں تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو ہم ضیائی تالیف بھی کہتے ہیں، جس کی کیمیائی مساوات آپ کو یہاں پر دی گئی ہے۔ سبز پودے کیا کر رہے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کر رہے ہیں، پانی کا استعمال کر رہے ہیں، سورج کی روشنی میں اور کلوروفل کی موجودگی میں۔ یہ غیر نامیاتی مادوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ گلوکوز بنا رہے ہیں، سادہ شکر بھی جسے ہم کہتے ہیں، آکسیجن خارج کر رہے ہیں اور پانی خارج کر رہے ہیں۔ یہ عمل ہوتا ہے سبز نباتات میں، لہٰذا وہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ ضیائی تالیف کے لیے درکار اہم اشیاء کون سی ہیں؟ ضیائی تالیف کے لیے درکار خام اشیاء کون سی ہیں؟ جیسا کہ آپ یہاں کیمیائی مساوات میں دیکھ سکتے ہیں بچوں، سبز پودے کون سی اشیاء کا استعمال کر رہے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ سورج کی روشنی کا بھی استعمال ہو رہا ہے، کلوروفل کی موجودگی میں یہ عمل انجام پا رہا ہے۔ کہاں پر ہو رہا ہے یہ عمل؟ کلوروپلاسٹ میں۔ اب یہ کلوروپلاسٹ کہاں پایا جاتا ہے بچوں؟ آپ جب کوئی سبز پتا آپ دیکھتے ہیں، ہرا جو پتا دیکھتے ہیں، اوپر کی جو اس کی پرت ہوتی ہے کیوٹائل کہلاتی ہے، ٹھیک اس پرت کے نیچے ایپیڈرمس خلیات ہوتے ہیں، اس کے نیچے ہوتے ہیں نباتاتی خلیات۔ نباتاتی خلیات کی شکل آپ نے دیکھی ہے،
उस नबाताती खलियात में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल तैयार करते हैं। ज़ियाई तालीफ के दौरान होने वाले अहम वाक़यात, कौन कौन से वाक़यात ज़ियाई तालीफ के दौरान होते हैं? देखिए, नंबर 1, क्लोरोफिल के जरिए नूरी तवन्नाई रोशनी को इंतजाब करना, नूरी तवन्नाई का जज्ब करना, सूरज की तवन्नाई को, नूरी तवन्नाई यानी सूरज की तवन्नाई को जज्ब करना किसके जरिए होता है अमल? क्लोरोफिल के जरिए। अभी मैंने आपको बताया क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल का क्या काम अंजाम दे रहा है यहाँ पे? क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को जज्ब कर रहा है। दूसरा, नूरी तवन्नाई को कीमियाई तवन्नाई में तब्दील करना और पानी के सालेमात की तहलील हो रही है। यहाँ पे पानी के सालेमात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तहलील हो रहे हैं। नूरी तवन्नाई का काम क्या है? आप देख रहे हैं शुआई तरकीब के लिए खाम अशिया क्या है? क्लोरोफिल है, सूरज की रोशनी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है। क्लोरोफिल नूरी तवन्नाई को जज्ब करने का काम कर रहा है। नूरी तवन्नाई जो जज्ब होती है वो कीमियाई तवन्नाई में तब्दील होती है। ये कीमियाई तवन्नाई पानी के सालेमात की तोड़-फोड़ का काम अंजाम देती है। पानी के सालेमात को तोड़ के उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलहदा कर देती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो शुआई तरकीब के दौरान इस्तेमाल हुआ था वो कार्बोहाइड्रेट की तहवील में इस्तेमाल होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट बनाता है। हाँ, अब यहाँ पर स्टोमेटा आपने देखा है बच्चों, पौधों के जो पत्ते होते हैं, पत्तों के ऊपरी सतह पर क्या पाए जाते हैं? बारीक बारीक सुराख पाए जाते हैं जो स्टोमेटा कहलाते हैं, है ना। ये स्टोमेटा का काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला करना। अब ये स्टोमेटा कहाँ होता है? पत्तों की सतह पर होता है। जब आप सुबह उठ के देखते हैं तो पत्तों की सतह पर आपको हल्के हल्के बूंदे नजर आती हैं पानी की। वो किसके जरिए खारिज हो रहे हैं? स्टोमेटा के जरिए खारिज हो रहे हैं। पत्तों के ऊपरी सतह पे जो बारीक सुराख होते हैं उसको स्टोमेटा या दहाने कहा जाता है, जिनके जरिए पौधे अपना जायद पानी उनमें होता है वो खारिज करते हैं। यानी पौधे जड़ों के जरिए जो पानी जज्ब करते हैं। जड़ों में कौन सी नसीज पाई जाती है बच्चों, आपको मालूम है? जो पानी को जज्ब करने का काम करती है, पानी के नक्ल हमल का काम करती है, वो नसीज का नाम है जाइलम। तो पौधों की जड़ों में जाइलम नसीज पाई जाती है जो क्या करती है? पानी को जज्ब करती है और पूरे पौधे के तमाम हिस्सों में वो पहुंचाने का, सरबराही का काम अंजाम देती है। जो जायद पानी होता है पौधों में वो स्टोमेटा के जरिए खारिज किया जाता है। और एक अहम काम क्या है स्टोमेटा का? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी तबादला। अभी आप ऊपर देख रहे थे कि किस तरह से ऑक्सीजन यहाँ पर बनता है शुआई तरकीब के बाद, है ना। शुआई तरकीब का अमल जब मुकम्मल होता है ज़ियाई तालीफ का तो ऑक्सीजन बनता है। वो ऑक्सीजन को कुरेबाद में खारिज करना और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो कुरेबाद में एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको अंदर दाखिल करना, पौधे के अंदर दाखिल करना, ताकि ज़ियाई तालीफ का अमल मुकम्मल हो सके। तो ये भी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो भी हो रहा है स्टोमेटा के जरिए। तो स्टोमेटा का काम अगर आपको पूछा जाएगा एग्जाम में 2 मार्क्स में तो इस तरह से आप लिखेंगे। नंबर 1, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला है स्टोमेटा के जरिए। और दूसरा होता है जायद पानी, यानी अम्ल शिरियान के जरिए जायद पानी खारिज किया जाता है। अम्ल शिरियान यानी वो अमल जिसके जरिए पौधे अपना जायद पानी खारिज करते हैं उसको अम्ल शिरियान कहते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए एक बात बताती चलूँ कि अम्ल शिरियान जो होता है, जो पौधे अपना जायद पानी खारिज करते हैं, आप देखते हैं सुबह सुबह पत्तों की सतह पे पानी की बूंदे हल्की से नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी तेज होना शुरू होती है, सूरज की गर्मी से वो पानी क्या होता है? तबखीर पाके कुरेबाद में चला जाता है। यही पानी बादल बन के फिर जमीन पर बरसता है। हम सुनते आ रहे हैं ना, ज्यादा अगर पेड़ पौधे होंगे, नबातात ज्यादा होंगे, घने जंगलात अगर ज्यादा होंगे तो बारिश की मिकदार भी ज्यादा होंगी, बारिश भी ज्यादा बरसेंगी। इसका मतलब अम्ल शिरियान के जरिए जो पौधे जायद पानी खारिज करते हैं वो भी बारिश बरसाने के लिए अहम रोल अदा करता है। हाँ, इसके अलावा सभी आबी ज़राओं की ऊपरी सतह का पानी भी तबखीर पाता है। पानी के चक्कर में आप लोग देखे ना किस तरह से तमाम आबी ज़राओं का पानी तबखीर पाके आसमान में बादल बन जाता है। तो इस तरह क्या है, स्टोमेटा के जरिए भी जायद पानी खारिज करते हैं जिसे अम्ल शिरियान कहते हैं। स्टोमेटा की शक्ल आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों। बिल्कुल क्या है, 2 खुलियात होते हैं जिसे हम गार्ड सेल्स या हिफाजती खुलिये कहते हैं, जिसके दरमियान एक मसाम होती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? पत्ते के अंदर पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट होते हैं इसके अतराफ से। ये खुलियात क्या, ये जो हिफाजती खुलियात हैं, वो हिफाजती खुलियात जब पानी की जरूरत होती है, जब पानी जायद होता है तो खुल जाते हैं, पानी जायद खारिज होने के बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाते हैं। इसी तरह गैसों के तबादले में भी ये हिस्सा लेते हैं।
اب دوسرا ہے غیر پرور تغذیہ. خود پرور تغذیہ کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سبز نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں ضیاء تالیف کے عمل کے ذریعے. اب دوسرا ہے غیر پرور تغذیہ، یعنی تغذیہ کا وہ طریقہ جہاں پر جاندار اپنی غذا کے لیے کسی دوسرے جاندار پر منحصر ہوتے ہیں. غیر پرور تغذیہ یا ہیٹیروٹروپک نیوٹریشن کہلاتا ہے. غیر پرور تغذیے کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 ہولوزوئک تغذیہ. یہاں پر کیا ہوتا ہے ہولوزوئک تغذیہ میں؟ ایک ایسا غیر پرور تغذیہ ہے جس میں ٹھوس غذا کو جسم کے اندر تحلیل کیا جاتا ہے. مثلاً یہ کس میں ہوتا ہے اس طرح کا تغذیہ؟ امیبا میں، جھینگر میں اور انسان میں ہوتا ہے اس طرح کا تغذیہ. اور دوسرا تغذیہ ہے یہاں ٹھوس غذا کو، یہاں پہ بتا رہا ہے ٹھوس غذا کو جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اس کو توڑ پھوڑ کے باریک سے باریک کیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا ہے گندخور تغذیہ، سیپروفیٹک نیوٹریشن. نام سے ہی ہم کو اندازہ ہو رہا ہے گندی چیزوں کے ذریعے حاصل ہونے والا تغذیہ، یعنی چند جاندار گندی چیزوں سے، سڑی گلی چیزوں سے، مردہ چیزوں سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں. مثلاً خمیر، پھپھون، مشروم. خمیر آپ کو معلوم ہے بچوں جو بیکری میں استعمال ہوتا ہے بریڈ کو پھلانے کے لیے. خمیر، پھپھون جو جب کھانا ہمارا خراب ہو جاتا ہے، روٹی خراب ہو جاتی ہے تو اس پہ پھپھوند آ جاتا ہے، اس کو سڑا گلا کے وہ اپنی اسی غذا حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے تیسرا تغذیہ ہے طفیلی تغذیہ. طفیلی تغذیہ کسی کہیں گے کسی کے طفیل کیا جانے والا، یعنی کسی کے سہارے سے ہونے والا تغذیہ، پیراسائٹک نیوٹریشن. یہ ایک ایسا غیر پرور تغذیہ ہے جس میں جاندار کسی دوسرے جاندار کے جسم کے اندر یا جسم پر رہ کر انہیں سے غذا حاصل کرتے ہیں. اگزامپل ہے اس کی امر بیل، جوں، ٹیپ ورم، آرکڈ. آرکڈ نباتات کا نام ہے بچوں. ٹیپ ورم بھی کیا کرتے ہیں کسی جاندار پر، سر کی جویں کسی جاندار پر ہے نا. آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں آرکڈ ہے ایک پودا ہے جو کسی دوسرے پیڑ کے سہارے سے وہ اگتا ہے اور اس سے وہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے. اسی طرح سے ٹیپ ورم ہے، پیٹ کے کیڑے ہیں، سر کی جویں ہیں، وہ کسی دوسرے جاندار پہ رہتی ہیں، اس سے رہائش حاصل کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سے غذا بھی حاصل کرتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں طفیلی تغذیہ. ایک خلوی عضویوں میں یعنی واحد خلوی عضویوں میں غذا کو جسم کے مکمل سطح سے حاصل کیا جاتا ہے. امیبا جو ایک واحد خلوی جاندار ہے، خلوی سطح پر پائے جانے والے عارضی انگشت نما ابھار کے ذریعے غذا حاصل کی جاتی ہے. امیبا کے جسم پہ جو سوڈوپوڈیا نامی نخلی جو پیر ہوتے ہیں اس کے ذریعے کیا کرتا ہے وہ غذا کو اپنے اطراف گھیر لیتا ہے. گھیر کے کیا کرتا ہے غذا کو خلوی جھلی کے اندر داخل کرتا ہے جہاں پر غذا سائٹوپلازم میں نفوذ کر جاتی ہے. بالکل سادہ طریقہ ہے یہ غذا حاصل کرنے کا جو واحد خلوی جاندار میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے انسان میں تغذیہ ایلیمنٹری کینال کے ذریعے ہوتا ہے. ایلیمنٹری کینال کیا ہے بچوں؟ ایلیمنٹری کینال ایک لمبا سا ٹیوب ہے، نلی ہے جو ہمارے منہ سے شروع ہوتی ہے اور مبرص پر ختم ہو جاتی ہے. تو اس ایلیمنٹری کینال کے مختلف حصے ہیں جہاں پر غذا کیا ہوتی ہے ہضم ہوتی ہے. تو اس طرح سے دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹری کینال کا سب سے پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ منہ. منہ کے ذریعے کیا ہوتی ہے غذا جسم کے اندر داخل ہوتی ہے. دانتوں کے ذریعے غذا کو پیس کر چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل کیا جاتا ہے. اس کے بعد منہ میں کیا ہے ایک لعاب ہوتا ہے، لعابی غدود ہوتے ہیں. وہ لعابی غدود کے ذریعے لعاب خارج ہوتا ہے جس میں ایک انزائم پایا جاتا ہے. اس انزائم کا نام ہے امائلیز. سیلیوری امائلیز بھی اسے ہم کہتے ہیں، لعابی امائلیز بھی ہم اسے کہتے ہیں، جس کا کام ہے اسٹارچ کو سادہ شکل میں تبدیل کرنا. جو اسٹارچ ہمارے غذا میں شامل ہو گئی، جو ہم نے نباتات سے غذا حاصل کی. آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو اپنی غذا ہے وہ نباتات اور حیوانات دونوں سے حاصل کرتا ہے. غذا میں موجود جو اسٹارچ ہوتی ہے وہ سیلیوری امائلیز کے ذریعے کیا ہوتی ہے اسٹارچ سادہ شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلا انزائم جو نظام ہاضمہ میں حصہ لیتا ہے وہ پایا جاتا ہے ہمارے لعاب میں. وہ انزائم کا نام کیا ہے؟ امائلیز. امائلیز کا کام کیا ہے بچوں؟ امائلیز کا کام ہے اسٹارچ کو سادہ شکل میں یعنی گلوکوز میں تبدیل کرنا. اب ہو گیا. اس کے بعد کیا آ گیا؟ منہ سے ہوتی ہوئی غذا کہاں پر آتی ہے؟ آئسوفیگس میں آتی ہے. آئسوفیگس یا پھر جسے ہم غذائی نالی بھی کہتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں آئسوفیگس ایک لمبی نالی ہے جسے ہم غذائی نالی بھی کہتے ہیں جو منہ سے میدے تک پہنچاتی ہے. غذا کو منہ سے میدے تک پہنچانے کا کام ہوتا ہے آئسوفیگس کا. کس طرح سے پہنچائی جاتی ہے؟ ڈائریکٹ نہیں جاتی ہے، لہروی شکل میں جاتی ہے. یہ جو
आइसोफिगस होता है, उसकी जो दीवारें होती हैं, उसके जो उजलात हैं, वो उजलात क्या हैं, फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत रखते हैं। इस फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत रखने की वजह से क्या है, ग़िज़ा धीरे धीरे मैदे तक पहुंचाई जाती है। ये फैलने और सिकुड़ने की जो हरकत है बच्चों, इसको पेरिस्टाल्टिक हरकत भी कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक हरकत यानी वो ग़िज़ाई नाली की वो हरकत जिसकी एक लहरवी हरकत होती है, लहर नुमा शक्ल वो इख्तियार करती है, फैलते सिकुड़ते हुए ग़िज़ा मैदे तक पहुंचाई जाती है। ये अहम हिस्से हैं। देखिए, अगर हिस्सों के नाम आपको लिखना है निज़ाम हाज़िमा के, देखो सबसे पहले क्या है, मुंह है, मुंह के बाद आइसोफिगस है, मैदा है, उसके बाद आप जिगर देख सकते हैं, जिगर के बाद क्या है, पित्ता है, इसके बाद इधर क्या है, लबलबा है, लबलबे के नीचे छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, है ना, इस तरह से। तो इस तरह से आइसोफिगस के जरिए कहाँ पहुंचाई गई ग़िज़ा, मैदे तक पहुंचाए गए। मैदे में पहुंचने के बाद जो ग़िज़ा है वहां पर क्या होती है, मैदा क्या करता है, देखिए बच्चों, मैदे से गैस्ट्रिक जूस खारिज होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक तुरशा पाया जाता है। मैदे में ग़िज़ा का क्या होता है, देखिए, ग़िज़ा जब मैदे में दाखिल होती है तो मैदे की दीवारों में मौजूद गैस्ट्रिक गुदूद के जरिए पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक तुरशा और मखात खारिज होते हैं। मैदा क्या खारिज करता है, गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है जिसमें पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक तुरशा होता है और मखात म्यूकस होता है। क्या काम है, देखिए, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को हजम करना। जो भी ग़िज़ा हम खा लिए जिसमें प्रोटीन थी, फॉर एग्जाम्पल दालें खाते हैं हम, दाल में प्रोटीन ज्यादा मिकदार में होता है, वो दालों के अंदर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन को हजम करने का काम कौन सा एंजाइम करता है, पेप्सिन। कहाँ पाया जाता है पेप्सिन, मैदे में। और एक तुरशा पाया जाता है मैदे में, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक तुरशा। हाइड्रोक्लोरिक तुरशे का काम क्या है, ग़िज़ा को तेजाबी मीडियम फराहम करना। ग़िज़ा को तेजाबी मीडियम क्यों फराहम किया जाता है बच्चों, ताकि पेप्सिन का काम आसान हो, यानी पेप्सिन प्रोटीन को आसानी से हजम कर सके। अब ये तेजाबी मीडियम क्या है, आप तेजाब असास के सबक में पढ़ चुके हैं, यानी जिसका पीएच कम होता है ना, 1 से 7 तक के अंदर जिसका पीएच आएगा उसको हम तेजाबी मीडियम कहते हैं। तो तेजाबी मीडियम का होना जरूरी है, पीएच का कम होना जरूरी है ताकि पेप्सिन का काम आसान हो सके। उसके बाद और एक काम होता है हाइड्रोक्लोरिक तुरशे का, वो है जो हम ग़िज़ा खा लेते हैं, ग़िज़ा में गैर ज़रूरी जरासीम जो आ जाते हैं, ग़िज़ा जो हम खाते हैं ग़िज़ा में जरासीम जो पाए जाते हैं, बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं, अगर वो हमारे ग़िज़ा में दाखिल हो गए तो मुंह के जरिए मैदे में आते हैं। मैदे में जो हाइड्रोक्लोरिक तुरशा है उन जरासीमों का खात्मा वो कर देता है, यानी जरासीम को किल करने का भी काम करता है हाइड्रोक्लोरिक तुरशा, ताकि हम बीमारियों से महफूज रह सकें। और तीसरा काम यहाँ पर है चीज मखात, म्यूकस। एक पतली झिल्ली होती है मैदे की दीवारों पर जो क्या करती है, मैदे की दीवारों को हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के असर से महफूज रखती है। तेजाब खतरनाक हो सकते हैं बच्चों, आपको मालूम है ना, तो उस खतरनाक तेजाब के असरात से मैदे को महफूज रखने का काम होता है मखात का। अब इसके बाद जो ग़िज़ा है वो छोटी आंत की तरफ आ जाती है, यानी मैदे में क्या हुआ, प्रोटीन का हाजिमा हुआ, हाइड्रोक्लोरिक तुरशा तेजाबी मीडियम उसको फराहम करता है। अब छोटी आंत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन चर्बियां मुकम्मल तौर पर हजम होती हैं। इसीलिए छोटी आंत को हम क्या कहते हैं, छोटी आंत वो जगह है जहां पर मुकम्मल हाजिमा होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, चर्बियों का मुकम्मल हाजिमा हो जाता है। छोटी आंत में क्या है, जिगर से लबलबे के रस और आंत के एंजाइम खारिज होते हैं। यानी जो आप ऊपर जिगर और लबलबा देख रहे हैं बच्चों, जिगर बाइल जूस तैयार करता है, वो बाइल जूस आके पित्ते में जमा हो जाता है, पित्ते की नली से वो छोटी आंत में इफराज किया जाता है, खारिज किया जाता है। इस तरह आप लबलबा देख रहे हैं बच्चों, लबलबे से भी एंजाइम खारिज होते हैं, वो भी डायरेक्टली छोटी आंत में आ जाते हैं। तो क्या काम होता है, देखिए, जिगर से आने वाला जो बाइल जूस है वो क्या काम करता है, चर्बियों के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में वो तोड़कर एमल्सिफिकेशन जिसे हम कहते हैं वो काम अंजाम देता है। इसके साथ साथ बाइल ग़िज़ा को कलवी भी बनाता है ताकि एंजाइम्स का काम आसान हो सके। जिगर से जो बाइल जूस आता है उसका काम होता है, बाइल जूस का काम होता है जो ग़िज़ा में चिकनाई के जो ज़र्रात हैं वो बड़ी बड़े बॉल्स की शक्ल में होते हैं, उसको तोड़कर वो छोटे छोटे गोलियों में तब्दील करता है। बड़े बड़े चर्बियों के, चिकनाइयों के टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील होने का अमल कहलाता है एमल्सिफिकेशन। एमल्सिफिकेशन किसे कहते हैं, 1 मार्क्स में अगर पूछा तो आप क्या लिखना, जिगर के अंदर पाया जाने वाला बाइल जूस क्या करता है,
चर्बियों के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे ग्लोब्यूल्स में तब्दील करता है। ये अमल एमल्सिफिकेशन कहलाता है। और अब यहाँ पर जब तक हमारी ग़िज़ा मैदे में थी, तेज़ाबी मीडियम उसमें था, पीएच ज़्यादा था, किसकी वजह से? हाइड्रोक्लोरिक तुरशे की वजह से। अब जब ग़िज़ा छोटी आंत की तरफ आती है तो उसको बाइल जूस क्या करता है? खलवी बनाता है, यानी उसको असासी बनाता है, उसका पीएच कम हो जाता है, तेज़ाबी खासियत उसकी कम हो जाती है। लबलबा, लबलबे से 2 एंजाइम्स खारिज होते हैं बच्चों, जिसका नाम है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को हजम करता है, थोड़े से जो प्रोटीन है वो मैदे में हजम हो जाते हैं, और बाकी के जो प्रोटीन है उसको ट्रिप्सिन प्रोटीन को हजम करने का काम करता है। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज एमल्सिफाइड चर्बियों की तहलील करता है। एमल्सिफाइड जो चर्बियां, जो बड़े बड़े चर्बी के ग्लोब्यूल छोटे ग्लोब्यूल्स में तकसीम हो चुके थे, उनको मजीद वो तोड़कर क्या करता है? फैटी एसिड्स में वो तब्दील कर देता है। कौन? लाइपेज। लाइपेज का काम है एमल्सिफाइड चर्बियों को मजीद तहलील करना। छोटी आंत में भी रस खारिज होता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, पेचीदा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और चर्बियों को फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तब्दील कर देते हैं। तो छोटी आंत में दूसरे एंजाइम जो पाए जाते हैं वो मजीद जो प्रोटीन पाए जाते हैं उसको अमाइनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, यानी जो भी हम पेचीदा सालेमात जो ग़िज़ा के हमारे ग़िज़ा में मौजूद थे, सालेमात पेचीदा, उनको वो सादा से सादा सालेमात में, उनकी इकाइयों में तब्दील करते हैं। इकाइयाँ क्या हैं? प्रोटीन की इकाई अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट की इकाई ग्लूकोज, चर्बियों की इकाई फैटी एसिड, ये तमाम अपनी छोटी छोटी इकाइयों में तब्दील हो जाते हैं। हजम शुदा ग़िज़ा आंत की दीवारों में पाए जाने वाले विलय, आंत की जो दीवार होती है छोटी आंत की, उसके अंदर क्या होते हैं? उंगली नुमा उभार नजर आते हैं आपको, जिसको हम विली कहते हैं। ये विली का काम होता है ग्लूकोज को, प्रोटीन को और फैटी एसिड को जज्ब करना। और विलय क्या करता है? इंजज़ाब के सतह रकबे में भी इजाफा करता है, यानी ताकि ज्यादा से ज्यादा ग़िज़ा जज्ब हो सके। और विलय में क्या होते हैं बच्चों? खून की नालियां होती हैं। ये तमाम चीजें जो विलय में जज्ब हो चुकी हैं, प्रोटीन है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, ग्लूकोज है और फैटी एसिड्स है, इनको वो क्या करती है? पूरे जिस्म तक पहुंचाती हैं। जब दौरान खून हमारे जिस्म में होता है तो खून की नालियों के जरिए ये विलय में पाए जाने वाले तमाम ग़िज़ा पूरे जिस्म में हमारे पहुंचाई जाती है। अब जितनी हम ग़िज़ा खाते हैं वो पूरी की पूरी हजम नहीं होती बच्चों, तो गैर हजम शुदा ग़िज़ा जो फासिद मादों की शक्ल में बचती है वो बड़ी आंत की तरफ आती है। गैर हजम शुदा ग़िज़ा जो फासिद मादे बनाती है वो बड़ी आंत में भेज दी जाती है, जहां पर उनमें पाया जाने वाला पानी जज्ब होता है, और जो बाकी गैर ज़रूरी मादे हैं वो मबरस के ज़रिए खारिज कर दिए जाते हैं। इस तरह निज़ाम हाज़िमा मुकम्मल होता है ना। हमने समझा कि किस तरह हमारा निज़ाम हाज़िमा काम करता है। जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसमें क्या होते हैं? ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। वो ग़िज़ाई अज्जा कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स हैं, चिकनाई है, लिपिड्स हैं। ये तमाम की तोड़ फोड़ होती है उनकी इकाइयों में, और ये इकाइयाँ आके विलय में जज्ब हो जाती हैं। विलय में ब्लड वेसल्स होती हैं, वहां से वो तमाम चीज़ों को पूरे जिस्म में हमारे खून में पहुंचाती हैं। अब हमारी ग़िज़ा जो ग्लूकोज है वो कहाँ पर आ गई? हमारे खून में आ गई बच्चों, है ना। इस तरह से क्या है? ग़िज़ा का हाज़िमा होता है। इसके बाद दूसरा जो अहम फेल है हयाती अफ़आल में वो है तनफ़ुस, रेस्पिरेशन। हाँ, छोटी जमातों से आप रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। रेस्पिरेशन के मतलब क्या है? अम्ल तनफ़ुस का मतलब क्या है? सांस लेना और खारिज करना, है ना। बिल्कुल आसान अल्फाज में अभी तक आपने इसको जाना, लेकिन मजीद हम इसके बारे में जानेंगे यहाँ पर कि अम्ल तनफ़ुस सिर्फ सांस लेना और सांस खारिज करने से बढ़कर भी क्या होता है? ग़िज़ा की तकसीद का वो काम करता है। किस तरह से ग़िज़ा तकसीद होती है और तवानाई वो खारिज करती है, यहाँ पर हम अम्ल तनफ़ुस में देखेंगे। तो अम्ल तनफ़ुस में देखिए, ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में ग्लूकोज जैसे पेचीदा नामियाती मुरक्कबात की तहलील से तवानाई का पैदा करना तनफ़ुस कहलाता है। अभी तक जो आप डेफिनेशन तनफ़ुस का पढ़ते आ रहे थे बिल्कुल आसान था, लेकिन अब देखिए असल में तनफ़ुस कहते किसे हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में ग्लूकोज, अभी जो हमने ग़िज़ा खाई थी वो ग्लूकोज से तब्दील हो गया और खुलिया तक वो ग्लूकोज पहुंचाया गया। ग्लूकोज जैसे पेचीदा नामियाती मुरक्कबात की फिर तहलील होती है, ग्लूकोज टूट जाता है
तवानाई पैदा करता है। हम ग़िज़ा क्यों खाते हैं बच्चों? तवानाई हासिल करने के लिए। तवानाई की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हम काम कर सकें। काम करने के लिए तवानाई की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ग़िज़ा हमको खाना पड़ेगा, है ना। तो ये तवानाई पैदा करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है? अभी तक हमने पढ़ा था ऑक्सीजन ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। तो वो ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हमारे खुलियात में पाया जाने वाला ग्लूकोज तहलील हो सके तवानाई में। मंदरजा झैल खाके के ज़रिए हम तनफ़ुस का तरीक़ाकार समझेंगे कि किस तरह से होता है। देखिए बच्चों, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर अगर आप ये खाका अच्छे से समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि अम्ल तनफ़ुस में होता क्या है। सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन वाला सालेमा। आपको मालूम है ना ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज है आपका, जो खुलियात में आ गया निज़ाम हाज़िमा का अमल मुकम्मिल होने के बाद, अब ये ग्लूकोज क्या होता है, साइटोप्लाज्म में जमा हो जाता है। साइटोप्लाज्म में वो जमा होता है, पायरुवेट वो बन जाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की वजह से वो पायरुवेट बन जाता है। साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पायरुवेट बन जाता है। और अब ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन वाला सालेमा है, जिसका जाब्ता है देखिए बच्चों C3H4O3 पायरुवेट का जाब्ता है ये। अब ये पायरुवेट क्या होता है, देखिए ये पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में क्या बनाता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले पायरुवेट जब बन गया हमारे पास, पायरुवेट ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और तवानाई बनाएगा। इथेनॉल 2 कार्बन वाला सालेमा है। 6 कार्बन वाला सालेमा साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन वाले सालेमे में तकसीम हो गया। 3 कार्बन वाला सालेमा ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, ऑक्सीजन के बगैर क्या होता है वो, अगर अम्ल तनफ़ुस का अमल हो रहा है। आपने अम्ल तनफ़ुस का अमल 2 तरीके से अंजाम पाता आपको मालूम है, हवाबाश तनफ़ुस और गैर हवाबाश तनफ़ुस। ये गैर हवाबाश तनफ़ुस है जो खमीर में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये खमीर, वाहिद खलवी जानदार, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती अम्ल तनफ़ुस के लिए। गैर हवाबाश तनफ़ुस का अमल है यहाँ पर, जहाँ पर क्या होता है पायरुवेट इथेनॉल में तब्दील होता है। इथेनॉल का जाब्ता है C2H5OH, यानी 3 कार्बन वाला सालेमा 2 कार्बन वाले सालेमे में तब्दील हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है, तवानाई खारिज करता है। ये जो तवानाई है ये बिल्कुल कम मिकदार में खारिज होती है। ये अमल कहाँ पर वाक़ होता है? खमीर जैसे वाहिद खलवी जानदार में होता है। अब उसके बाद ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट जो बन गया, अगर हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फुकदान यानी कमी, ऑक्सीजन की फुकदान में ये अमल होता है हमारे उजलात में। हाथ और पैर के जो उजलात है ना बच्चों, इसमें ये अमल होता है। ऑक्सीजन का फुकदान अगर हो रहा है, हम भाग दौड़ ज्यादा रहे हैं तो सही मिकदार में ऑक्सीजन हमको नहीं मिलती है ना। तो उस टाइम पे जब हम बड़ा कोई हेवी काम करते हैं, उस टाइम पे भी हमको ऑक्सीजन सही मिकदार में नहीं मिलती। उस टाइम पे क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड लाम होना, ये लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। लैक्टिक एसिड फिर 3 कार्बन वाला सालेमा है बच्चों। लैक्टिक एसिड का जाब्ता है C3H6O3। लैक्टिक एसिड का जाब्ता है C3H6O3। लैक्टिक एसिड में तब्दील होता है पायरुवेट और तवानाई खारिज करता है। ये कहाँ होता है? हमारे उजलात में। कब होता है? ऑक्सीजन की कमी में। ऑक्सीजन की कमी में पायरुवेट लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है, जिस लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमारे उजलात में अकड़न पैदा होती है। हमारे उजलात ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है, मसल्स जो हैं, उजलात जो हैं वो थोड़े से अकड़ जाते हैं। क्यों अकड़ जा रहे हैं? लैक्टिक एसिड बनने की वजह से। अगर फिर से हम गहरी सांस लेंगे, ऑक्सीजन सही मिकदार में होंगी तो अकड़न दूर हो जाती है। तो इस तरह लैक्टिक एसिड कब बनता है हमारे उजलात में? ऑक्सीजन के फुकदान में, ऑक्सीजन की कमी से। लैक्टिक एसिड के बनने से क्या होता है हमारे उजलात में? हमारे उजलात क्या होते हैं? अकड़ जाते हैं। अब दूसरा काम है, अब तीसरा देखिए अमल जो होता है साइटोप्लाज्म में ही होता है। ये ग्लूकोज जब वो पायरुवेट में तब्दील हो जाता है, अगर ऑक्सीजन सही मुनासिब मिकदार में उसको मिल रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो जाता है, पानी बनाता है और तवानाई। ये अमल होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज तहलील होकर क्या हो रहा है? पायरुवेट बन रहा है साइटोप्लाज्म में। पायरुवेट तहलील होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन वाला सालेमा है, पानी बनता है और साथ ही साथ तवानाई बनती है। तो ये होता है हमारे खुलियात, हर एक खुलिये के माइटोकॉन्ड्रिया में ये अमल वाक़े होता है, अम्ल तनफ़ुस का अमल। अच्छी बात है। तो अब हम देखेंगे तनफ़ुस के अमल में होने वाले आमाल। इंसान के जरिए ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज की जाती है। तो आसान है, आपको मालूम है अम्ल तनफ़ुस में होता क्या है?
ऑक्सीजन को जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है नाक के जरिए और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज किया जाता है। खलवी तनफुस के दौरान सादा ग़िज़ाई मुरक्कबात की तहलील से तवानाई खारिज होती है। ये जो ऊपर वाला जो फेल है, अमल है, अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे। अब आपने इस बारे में सीखा कि किस तरह से खलवी तनफुस, हर एक खुलिये के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पर मजीद क्या है, ग्लूकोज की तोड़ फोड़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में, और तवानाई खारिज होती है। मुरक्कबात की तहलील होकर तवानाई खारिज होती है। ये अमल होता है अमले तनफुस में। तनफुस दो तरह का है बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था। ईस्ट में होने वाला, खमीर में होने वाला तनफुस गैर हवाबाज तनफुस है, जबकि हवा की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होने वाला तनफुस हवाबाज तनफुस कहलाता है। दोनों के दरमियान क्या फर्क है देखिए बच्चों। हवाबाज तनफुस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछ सकता है। देखिए, गैर हवाबाज तनफुस ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। हवाबाज तनफुस खुलिये के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि गैर हवाबाज तनफुस साइटोप्लाज्म में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी महासिलात हैं इसके, जबकि अल्कोहल और लैक्टिक एसिड गैर हवाबाज तनफुस के महासिलात हैं। तवानाई कसीर मिकदार में, ज्यादा मिकदार में खारिज होती है जब हवाबाज तनफुस होता है। जब गैर हवाबाज तनफुस होता है तो तवानाई बिल्कुल कम मिकदार में खारिज होती है। तनफुस के दौरान खारिज होने वाली तवानाई फौरन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की सालिमात की तैयारी में इस्तेमाल होती है। जो तवानाई तैयार होती है वो तवानाई तब्दील हो जाती है एटीपी मॉलिक्यूल्स की शक्ल में। एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका जाब्ता है C10 H16 H5 O13 P3। फॉस्फेट है ना इसमें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की शक्ल में वो तवानाई तैयार होती है। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? तमाम खुलियात में सभी सरगर्मियों के लिए ईंधन के तौर पे वो काम करता है। जब भी हमारे जिस्म को तवानाई की जरूरत होती है तो उसको तवानाई मुहैया कराने का काम करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी भी इसको कहा जाता है, एटीपी को। इंसान में तनफुसी निज़ाम, हमारे इंसान यानी हमारे जिस्म में तनफुसी निज़ाम किस तरह से काम करता है। तनफुस में हिस्सा लेने वाले हिस्से कौन कौन से हैं देखिए बच्चों। सबसे पहले नाक का रास्ता, नाक के रास्ते से हवा अंदर दाखिल होती है। उसके बाद है, आप देख सकते हैं, उसके बाद है दहानी, जो फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया जो होती है वो कार्टिलेज के छल्ले से बनी होती है। कार्टिलेज यानी कुरकुरी जो हड्डी होती है ना, कुरकुरी हड्डी से बनी हुई नली होती है, जिसके अंदर क्या होती है? सांस की नली होती है। ट्रैकिया के अंदर सांस की नली होती है, वो बिल्कुल नाजुक होती है, मुलायम उजलात से बनी होती है। उसको महफूज रखने के लिए उसके ऊपर ट्रैकिया की यानी कार्टिलेज की क्या है? अस्तरकारी की जाती है ताकि वो सांस की नली महफूज रह सके। अब ये सांस की नली मजीद वो क्या है? 2 ब्रांचेस में तकसीम हो जाती है। दोनों फेफड़ों की तरफ वो आती है। फेफड़ों में आकर, फेफड़ों में जब दोनों शाखों में वो बढ़ जाती है, वो शाखें कहलाती हैं ब्रोंकाई, जिसे हम कहते हैं। ब्रोंकाई फिर मजीद तकसीम होकर ब्रांक्यूल्स बनाती है। ब्रांक्यूल्स के सिरों पर आपको क्या नजर आ रहा है बच्चों? आपको नजर आ रहा है छोटे छोटे जो गुबार नुमा, जो थैले नुमा स्ट्रक्चर है, उसको कहते हैं हम एल्वुलाई। अगर एक है तो एल्वुलस कहते हैं, एक से ज्यादा है, इस तरह से बहुत सारे ये होती हैं जिसको हम एल्वुलाई कहते हैं। एल्वुलाई तनफुसी ब्रांक्यूल ब्रोंकाई से जुड़े होते हैं, ब्रोंकाई ट्रैकिया से जुड़े होते हैं, ट्रैकिया लैरिंग फेरिंग्स और वो नाक के रास्ते की तरफ वो खुलते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि निज़ाम में अम्ले तनफुस में हिस्सा लेने वाले हिस्से कौन से हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। सबसे पहले नाक के जरिए क्या होती है? ऑक्सीजन हमारे सांस की नली में दाखिल होती है। सांस की नली में आप देख सकते हैं बच्चों फेरिंग्स है। फेरिंग्स एक मुश्तरक रास्ता है जहां पर क्या होता है? सांस की नली और ग़िज़ाई नली दोनों का एक मुश्तरक रास्ता फेरिंग्स है। बास टाइम आप देखते हैं ना बच्चों, जब खाते वक्त हमको ठसका लगता है तो खाने के दाने क्या है? हमारे नाक से वापस आते हैं ना। जब बात अब ज्यादा करते हैं हम खाने के टाइम पे तो बास टाइम क्या होता है? ठसका लगने से खाने के जो दाने हैं वो नाक से बाहर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि नाक और मुंह का एक मुश्तरक रास्ता है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। ये फेरिंग्स के नीचे होता है लैरिंग्स। जैसे ही ग़िज़ा फेरिंग्स में आती है, दोनों मुश्तरक रास्ते से हैं। इसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन
फेरिंग्स तक आती है, दोनों मुश्तरक रास्ता है। ऑक्सीजन उसके बाद लायरिंग्स में आती है। लायरिंग्स क्या है बच्चों? साउंड बॉक्स है, जहां से हमारी आवाज पैदा करती है ना, जिसे हम वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हैं, आवाज जहां से हमारी निकलती है। उसके बाद ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बिल्कुल पीछे ग़िज़ाई नाली होती है और ट्रैकिया के अंदर होती है सांस की नली, जहां से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। दोनों का एक मुश्तरक रास्ता है जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। अब ट्रैकिया किससे बना हुआ है? कुरकुरी हड्डी से बना हुआ है, ताकि सांस की नली जो मुलायम उजला से बनी है वो महफूज रह सके। अब ट्रैकिया मजीद, जो ट्रैकिया तक हमारी ऑक्सीजन नहीं थी, वो ऑक्सीजन कहाँ पर दाखिल होती है? हमारे ब्रोंकाई में दाखिल होती है। ब्रोंकाई 2 शाखें हैं जो फेफड़ों में खुलती हैं। 2 फेफड़े नजर आ रहे हैं ना आपको? फेफड़े जो होते हैं वो फसलियों के पीछे होते हैं। तो फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, वहां से होती हुई वो ब्रोंक्यूल्स में पहुंचाई जाती है। ब्रोंक्यूल्स के जो आखिरी जो सिरे हैं, किनारे हैं, वहां पर पाई जाती हैं अल्वुलाई। अल्वुलाई यानी छोटी छोटी थैलियां होती हैं, ऑक्सीजन को वो जखीरा करती हैं। अब अल्वुलाई में होते हैं ब्लड वेसल्स, खून की नालियां। खून की नालियां होती हैं अल्वुलाई में। वो अल्वुलाई से क्या करती हैं? ऑक्सीजन जो अल्वुलाई तक पहुंची है वो उर्क़ शीरिया में नफूस पजीर होकर हेमोग्लोबिन से जुड़ जाती हैं और तमाम बाफ्तों तक ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। खलवी तनफ़ुस से पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो हमारे खुलियों में कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाफ्तों से खून में शामिल होकर उर्क़ शीरियाँ के जरिए, उर्क़ शीरियाँ फेफड़ों में निकलती हैं, फेफड़ों से वो अल्वुलाई तक पहुंचाई जाती हैं। अल्वुलाई से वो फिर क्या होती हैं? ऊपर ब्रोंक्यूल्स तक आती हैं, ब्रोंकाई तक आती हैं, होते हुए वो ट्रैकिया से होते हुए नाक के रास्ते बाहर खारिज कर दी जाती है। इस तरह गैसों का तबादला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल की जाती है जिस्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो जिस्म में तैयार हो चुकी है उसको खारिज किया जाता है। यहाँ पर अम्ल तनफ़ुस का अमल पूरा होता है। जमीन पर रहने वाले जानदार फिजाई ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, जबकि आबी जानदार पानी में घुली हुई ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं ना। हम डायरेक्ट फिजा से ऑक्सीजन हासिल करते हैं, जबकि पानी में पाए जाने वाले जानदार क्या करते हैं? घुली हुई ऑक्सीजन वो पानी से हासिल करते हैं। स्टोमेटा जो पौधों के तनों में होता है ना, पौधों के पत्तों में जो होता है, पत्तों में तनफ़ुस स्टोमेटा के जरिए होता है। हमारे अंदर तनफ़ुस फेफड़ों के जरिए, पौधों में जो तनफ़ुस होता है स्टोमेटा के जरिए। ऊपर आपने स्टोमेटा की शक्ल देखी थी, पत्तों की सतह पे पाया जाता है। यहाँ पर पत्तों के सतह के जरिए भी ऑक्सीजन बाहर खारिज किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जाती है। साथ ही साथ तने में पाए जाने वाली सुराखें, जिसे लेंटिसेल्स कहते हैं, उसके जरिए भी ऑक्सीजन खारिज की जाती है, और जड़ों की सतह से भी ऑक्सीजन खारिज की जाती है। तो इस तरह हमने 2 अफ़ाल मुकम्मिल कर दिए हैं बच्चों आज। नंबर 1 निज़ाम हाज़िमा या तग़ज़िया, नंबर 2 अम्ल तनफ़ुस। तो यहाँ पर ये आपको कितना समझ में आया उसको देखने के लिए क्या है, अब यहाँ पर एक क्विज चलाया जाएगा बच्चों। गौर से क्विज के सवालात को पढ़िए, इसमें हिस्सा लीजिए और अपना जो नॉलेज है उसको चेक कीजिए कि आपने आज क्या कुछ सीखा। इक़रा क्लासेस के जानिब से मुझे साइंस की क्लास लेने का मौका दिया गया है, जिसके लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। हाँ, अब तक हमने जो सबक पढ़ा है हयाती अफ़ाल, वो आपको कितना समझ में आया, ये क्विज़ होने के बाद आपको समझ में आएगा। तो क्विज़ स्टार्ट करते हैं हम। क्विज़ का पहला सवाल है, इंसानों में गुर्दे जिस निज़ाम का हिस्सा हैं वो है। नंबर ए तग़ज़िया, बी तनफ़ुस, सी इख़राज, डी नक़्ल व हमल। हाँ, इसका सही जवाब है इखराज, है ना। इखराज के गुर्दे क्या काम करते हैं? फ़िज़ूल मादों को जिस्म से खारिज करने में मदद करते हैं। सवाल नंबर 2, खुद परवर तग़ज़िया के लिए ज़रूरी अशिया हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी सूरज की रोशनी, या डी मज़कूरा वाला सभी। यानी इनमें से
कौन से अशिया शुआए तरकीब के लिए ज़रूरी हैं? सही जवाब है मस्कुरा वाला सभी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी से ही खुद परवर तग़ज़िया में पौधे क्या करते हैं? ज़ियाए तालीफ का अमल मुकम्मिल करते हैं। सवाल नंबर 3, पौधों में ज़ाइलम का काम है। ये बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों। क्या काम है पौधों में? ज़ाइलम नसीज क्या काम करती है? नंबर 1, पानी की नक़्ल हमल करती है, बी, ग़िज़ा की नक़्ल हमल करती है, सी, अमाइनो एसिड्स की नक़्ल हमल होती है, या फिर ऑक्सीजन की नक़्ल हमल होती है। इसका सही जवाब है पानी की नक़्ल हमल। पौधों की जड़ों से पानी को जज़्ब करना है ज़ाइलम का काम। सवाल नंबर 4, पायरुवेट तहलील होकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और तवानाई फ्राहम करता है। ये अमल खुलिये में कहाँ वाक़ होता है? अमल तनफ़ुस के दौरान जो पायरुवेट तहलील होता है, ये अमल खुलिये में कहाँ पर वाक़ होता है? ए, साइटोप्लाज्म में, बी, माइटोकॉन्ड्रिया में, सी, क्लोरोप्लास्ट में, डी, न्यूक्लियस में। इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया में। पायरुवेट तहलील होकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और तवानाई खारिज करता है। सवाल नंबर 5, इंसानों में निज़ाम हाज़िमा के दौरान ग़िज़ा के साथ सबसे पहले शामिल होने वाला ख़ामिरा। सबसे पहला ख़ामिरा जो हाज़िमे में हिस्सा लेता है। इसके ऑप्शंस हैं नंबर ए, पेप्सिन, बी, लाइपेज, सी, अमाइलेज, डी, ट्रिप्सिन। इसका सही जवाब है अमाइलेज, है ना। निज़ाम हाज़िमे का अमल मुंह से शुरू होता है। हमारे जो लौब दहन होता है उसमें अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है? ग्लूकोज स्टार्च को ग्लूकोज में तब्दील करता है, सादा शक्कर में तब्दील करता है अमाइलेज। सवाल नंबर 6, मैदे में पाया जाने वाला ख़ामिरा। बिल्कुल आसान सवाल है बच्चों ये। ए, लाइपेज, बी, अमाइलेज, सी, पेप्सिन, या डी, ट्रिप्सिन। मैदे में पाया जाने वाला ख़ामिरा कौन सा है बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखो। जवाबात अगर आपको आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, इसका सही जवाब है पेप्सिन। मैदे में पाया जाने वाला ख़ामिरा पेप्सिन है। सवाल नंबर 7, गुर्दों की फैली और साख्ती इकाई कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, नेफ्रॉन, ऑप्शन बी, न्यूरॉन, ऑप्शन सी, शीरियान, ऑप्शन डी, एल्वुलाई। गुर्दों की फैली और साख्ती इकाई का नाम लिखिए बच्चों। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप इसका जवाब। हाँ, तो सही जवाब है नेफ्रॉन। सवाल नंबर 8, इंसानों में तनफ्फुसी पिगमेंट। ए, ऑक्सीजन, बी, हेमोग्लोबिन, सी, सुर्खुलियात, डी, कोई नहीं। तनफ्फुसी पिगमेंट किसे कहते हैं? जो ऑक्सीजन को क्या करता है? ऑक्सीजन की सरबराही करने वाला पिगमेंट तनफ्फुसी पिगमेंट कहलाता है। वो कौन सा है? सही जवाब है इसका हेमोग्लोबिन। सवाल नंबर 9, हमारे उज़लात में अकड़न की वजह। हमारे उज़लात में कभी कभी अकड़न होती है बच्चों, उसकी वजह क्या है? ऑप्शन ए, पायरुवेट का बनना, ऑप्शन बी, इथेनॉल का बनना, ऑप्शन सी, लैक्टिक एसिड का बनना, ऑप्शन डी, कोई नहीं। हमारे उज़लात में क्या होता है? अकड़न होती है बास टाइम पे, है ना। हाथ और पैर के उज़लात में बहुत ज़्यादा काम करने से अकड़न होती है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की वजह से भी अकड़न हो जाती है। उसकी वजह क्या है? लैक्टिक एसिड का बनना। जब क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है तो लैक्टिक एसिड बनता है, जिसकी वजह से अकड़न होती है। सवाल नंबर 10, ज़ियाई तालीफ के दौरान क्लोरोफिल का फ़ेल क्या है? ज़ियाई तालीफ के दौरान क्लोरोफिल क्या काम करता है? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना, ऑप्शन बी, नूरी तवानाई को कीमियाई तवानाई में तब्दील करना, ऑप्शन सी, नूरी तवानाई को जज़्ब करना, ऑप्शन डी, मज़कूरा वाला सभी। शुआई तरकीब का अमल जो होता है पौधों में, अपनी ग़िज़ा वो खुद तैयार करते हैं,
اس کے دوران کلوروفل کا استعمال ہوتا ہے. وہ کلوروفل کیا کام کرتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے نوری توانائی کو جذب کرنا. ہے نا بچوں، نوری توانائی کو جذب کرتا ہے کلوروفل. تو اس طرح سے ہمارا یہاں پر کوئز ختم ہو جاتا ہے. یہ تمام سوالات کوئز میں جو پوچھے گئے ہیں آپ کیا کیجئے، فیئر کاپی میں لکھ کر اس کو 1-2 دفعہ آپ ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا. شکریہ.